Guys, and welcome back to our YouTube channel Pocket Library. So our last topic was forms of market, chapter number 5th, and the topic was perfect competition. So we have covered the topic perfect competition, its features, types of market, etc. So our today's topic is imperfect competition, and we have two parts in that. There is monopoly and second is oligopoly. First we will focus on मोनोपोली. दैट इज व्हाट इज मोनोपोली. व्हाट इज मोनोपोली? पहले हमको क्या समझना है? व्हाट इज मोनोपोली? मोनोपोली इज नथिंग बट अ मार्केट इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर. ओके, इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर हु हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट एंड द प्रोडक्ट विच ही सेल्स डज नॉट हैव एनी क्लोज सब्सटीट्यूट. इन सिंपल वर्ड्स, मोनोपोली वो मार्केट होता है जहाँ पर एक सिंगल सेलर होगा जो पूरे मार्केट के को कंट्रोल करेगा और वो जो प्रोडक्ट सेल करेगा उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं रहेगा. ओके, सो बेसिकली अ वर्ड मोनोपोली इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड इन विच मोनो मीन्स सिंगल, ओके, एंड पोली मीन्स सेलर. ओके, इट्स मोनोपोली. ओके, so a monopoly is a market where there is a single seller who has complete control over the supply and the product which he sells it does not have any close substitutes. It's the meaning of monopoly. अगर मैं मेरी लैंग्वेज में बताऊँ, सिंपल लैंग्वेज में, तो उसका मतलब ये होता है कि मोनोपोली एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर एक सिंगल सेलर होगा जो सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचेगा और वो प्रोडक्ट जो बेचेगा उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं रहेगा और वो पूरे मार्केट के ऊपर उसको क्या करेगा? कंट्रोल करेगा. According to me, the best example of the monopoly is railway. Okay, रेलवे एक पब्लिक मोनोपोली है. सेंट्रल रेलवे जो अपना रेलवे है, ठीक है, मुंबई के अंदर, वो क्या है? वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है मोनोपोली का. ठीक है, तो बस यही बात ध्यान रखो, मोनोपोली के लिए सिंगल सेलर है जो एक प्रोडक्ट बेच रहा है जिसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है और उसका कंट्रोल कर रहा है वो एंटायर मार्केट को. ओके, अब इसको और अच्छे से समझना है टॉपिक को, तो लेट फोकस ऑन द features of monopoly. Okay, so our first feature of the monopoly is single seller. As I said you in the meaning and I have told you before also, the first point of the feature will be the same as what we have learned in the meaning. Okay, means जो पहला पॉइंट हम हमेशा पढ़ते हैं वो ऑलमोस्ट जो हमने मीनिंग में पढ़ा है वही फीचर्स का पहला पॉइंट होता है. ओके, तो पहला पॉइंट क्या है हमारा? सिंगल सेलर. ओके, always in monopoly market there is a single seller who controls entire supply of the product, who controls entire market of the product, and the product which he sells does not have any close substitute. There is a single seller. There is a single seller in the monopoly market. It's point number 1. Okay, the point number 2 is there is no close substitute. What is that? There is no close substitute. Wait a minute. There is no close substitute. Okay, the product which monopolist sells in the market does not have any close substitute. Okay, for example, we don't have a substitutes for railway. Okay, we don't have another local train which we can use. We have a single central railway which we use for daily traveling. Okay, the product which monopolist sell does not have any close substitute. Okay, third point is barriers to entry. There are legal barriers, there are natural barriers, there are many barriers to entry in the market. Means a competitor cannot enter the monopolist market easily. There are some natural and technological and legal barriers which restrict the competitors to enter in the market. For example, person manufacturing some product with a technology. Okay, he is having an advanced technology with them. They are having an advanced technology with them. So there is a technological barrier. That technology cannot be afforded or bought by the competitor. Okay, there are legal barriers such as patent, trademarks, etc. There are natural barriers. Natural barriers means the monopolist has some natural advantages which the competitor does not have. Okay, so there are legal, natural and technological barriers which restricts the another competitor to enter the market. In simple words, if I will say कि barriers to entry मतलब एक competitor, okay, वो competitor क्या करेगा?
कॉम्पिटिटर के वो एंटर नहीं कर पाएगा मार्केट में, बिकॉज मोनोपोलिस्ट के पास कुछ बैरियर्स है, कुछ एडवांटेजेस है टेक्नोलॉजिकल वे में, लीगल वे में और नेचुरल वे में। ठीक है, एग्जाम्पल, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है मोनोपोलिस्ट जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो खरीद नहीं सकता, उसके पास है नहीं, तो ये क्या है, एक एडवांटेज है और ये बैरियर है कॉम्पिटिटर के लिए मोनोपोलिस्ट की मार्केट को एंटर करने के लिए। अपने पास ऐसा मोनोपोलिस्ट, ऐसा कोई नेचुरल एडवांटेज है जो कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, या कोई लीगल एडवांटेज है जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क वगैरह, जिसकी वजह से कॉम्पिटिटर हमारी मार्केट में एंटर नहीं कर सकता है। पॉइंट नंबर 4 इज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई। दिस है आई always said you and also said you in the meaning that a monopolist have a complete control over the market supply, means the product which he wants to sell, the quantity of the product and the demand of the product. He know what is the demand of his product, he know what is the quantity he wants to supply. Okay, so he will have a complete control over the market. In simple words, in layman's term, monopolist पूरे मार्केट के सप्लाई को क्या करता है, कंट्रोल करता है, इसको कितना सेल करना है और कितना बेचना है। ओके, मतलब उसको पता है कि मेरा डिमांड कितना है और मुझे कितना मार्केट में लेके आना है। ओके, तो क्या कर रहा है, पूरी मार्केट की सप्लाई को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। अगेन द बेस्ट एग्जांपल इज रेलवे। ओके, रेलवे बंद हुआ, बहुत लोगों को तकलीफ हुआ उस वजह से। ठीक है, रेलवे जब बंद हुआ, ठीक है, अब ये रेलवे जब स्टार्ट हुआ, ये रेलवे के हाथ में है अभी कि उन लोग कितनी लोकल ट्रेन ऑपरेट करना है, क्या कॉस्ट रखना है, क्या प्राइस रखना है, इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सप्लाई। ओके, उसके बाद 5th है प्राइस मेकर। ए मोनोपोलिस्ट इज ऑलवेज हैव एन एडवांटेज टू डिसाइड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। इफ ही इज सेलिंग इन हाई प्राइस, ही विल always can decide the price what he wants. Okay, means वो एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, एक याद रखने के लिए, कि वो 1 रुपये की चीज़ को 100 रुपये में भी बेचेगा, 1000 रुपये में भी बेचेगा, उससे कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है, बिकॉज ही हैव दैट मोनोपोली पावर। ओके, सो मोनोपोलिस्ट इज ऑलवेज ए प्राइस मेकर। ही हिमसेल्फ डिसाइड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वॉट विच ही इज सेलिंग। ओके, मतलब सिंपल वर्ड में मोनोपोलिस्ट क्या कर रहा है, प्राइस मेकर है। वो मार्केट फोर्सेस की वजह से प्राइस डिसाइड नहीं करता है, वो अपने तरीके से प्राइस डिसाइड करेगा। उसको कल को अगर रेलवे टिकट का प्राइस बढ़ा दे तो उसको कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है, बिकॉज रेलवे ऑलवेज इज हैविंग हिज मोनोपोली पावर। ओके, सो अगर प्राइस बढ़ा भी दे टिकट का तो वी कांट क्वेश्चन देम और वी कांट कंट्रोल देम। ओके, सो मोनोपोलिस्ट इज ऑलवेज ए प्राइस maker. He himself decide the price what he want to, or what he want to sell, or which product he want to sell. The price is decided by him. Okay, and the 6th point is price discrimination. In simple word, price discrimination is nothing but charging different price to different consumer. What it is? Charging different price to different consumer, which means कि मैं मोनोपोलिस्ट हूँ, ठीक है, मेरे पास पावर है कि मैंने कस्टमर ए को मेरे प्रोडक्ट का प्राइस कुछ और दिया और कस्टमर बी को अपने हिसाब से दूंगा। कस्टमर ए मेरे पास आया, मैं उसको जानता नहीं हूँ, मैंने फॉर एग्जांपल मैं बेच रहा हूँ, ये मार्कर बेच रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास ये मार्कर की मोनोपोली है। फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग अ मोनोपोली टू प्रोड्यूस दिस मार्कर, ठीक है। व्हाट आई विल डू, व्हाट डज द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स, व्हाट आई विल डू कि मैं ये मार्कर कस्टमर ए को 15 रुपये में बेचा, कस्टमर बी मेरे पास आया जो मेरा दोस्त है, बोला भाई ठीक है अपना ही प्रोडक्शन है, अपनी मोनोपोली है, ये तू मार्कर मेरे से 10 रुपये में लेके जा। दिस कॉल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। व्हेन यू डिस्क्रिमिनेट समथिंग इट्स कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन, एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स चार्जिंग डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट कंज्यूमर। ओके, इट्स कॉल्ड एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एग्जाम्पल याद रखना, कस्टमर ए को मैंने मार्केट पर ये मार्कर दिया, मेरे पास मोनोपोली है मार्कर प्रोड्यूस करने की 15 रुपये में, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ, ये 10 रुपये में बेच रहा हूँ। मेरा कस्टमर भी मेरा दोस्त है, उसको मैं 10 रुपये में बेच रहा हूँ, ठीक है। सो इट्स प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द फीचर्स ऑफ मोनोपोली इज देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। उसका फर्म भी वही है, उसका इंडस्ट्री भी वही है, बना भी वही रहा है और बेच भी क्या कर रहा है, वही रहा है। इस पॉइंट में डिस्कस करने ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड व्हाट
the features of monopoly. Always there will be a single seller. There is no close substitute for the product which he sells. There are many barriers to entry for the competitors. Complete control over the market supply. Monopolist himself control the supply of the product which he sells. Okay, and the price maker means he is a price maker, price decider of the product what he sells. Okay, and the sixth point is price discrimination, charging different price to different consumer. No distinction between firm and industry. These are the features of monopoly. Okay, there is a single seller who have complete control over the price of the on the market, and the product which he sells does not have any close substitutes. With this we have completed our features of monopoly. Our next topic is types of monopoly. Okay, so our next topic is types of monopoly. It's very simple and easiest topic in this chapter, the types of monopoly. Okay, first is private monopoly. Private monopoly is nothing but when any private company controls the market supply or controls the market, and the product which they sell does not have any close substitutes. It is known as private monopoly. मतलब प्राइवेट कंपनी ऐसा कोई प्रोडक्ट बना रही है जिसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट, जिसका कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है, क्लोज छोड़ दो, जिसका कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है, एंड दूसरा वो कंट्रोल कर रही है मार्केट को, उसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट मोनोपोली. तो प्राइवेट मोनोपोली में क्या होगा? प्राइवेट कंपनी रहेगी. एग्जाम्पल टाटा ग्रुप्स ऑफ कंपनी. ओके, टाटा ग्रुप्स ऑफ कंपनी ऐसा कोई प्रोडक्ट बना रही है जिसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है और वो मार्केट को क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है. ठीक है, फर्स्ट. सेकेंड, पब्लिक मोनोपोली. पब्लिक मीन्स आपकी गवर्नमेंट. व्हेन गवर्नमेंट सेल्स एनी प्रोडक्ट, ठीक है, विच डज नॉट हैव एनी सब्सटीट्यूट, और गवर्नमेंट कंट्रोल्स द होल मार्केट. मतलब गवर्नमेंट ऐसा कोई प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट बेच रही है जिसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है मार्केट में, और गवर्नमेंट क्या कर रही है? पूरी मार्केट को क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है. सो क्या बोलेंगे? पब्लिक मोनोपोली. लीगल मोनोपोली थर्ड है अपना, लीगल मोनोपोली. लीगल मोनोपोली इज नथिंग बट, लीगल मोनोपोली जब एमर्ज होगी, जब आपको कोई पेटेंट, ट्रेडमार्क वगैरह की वजह से क्या हो रहा है? मोनोपोली का एडवांटेज मिल रहा है. मतलब कि आपका डिज़ाइन, आपका प्रोडक्ट कोई कॉपी नहीं कर सकता, आपको लीगल एडवांटेज जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क वगैरह. सो क्या बोलेंगे? लीगल मोनोपोली बोलेंगे. फोर्थ, नेचुरल मोनोपोली. आपको कोई नेचुरल एडवांटेज है, क्लाइमेटिक एडवांटेज है, रेनफॉल का एडवांटेज है, ठीक है, कोई नेचुरल रिसोर्सेज का एडवांटेज है, उससे भी क्या होता है? नेचुरल मोनोपोली क्या होती है? एमर्ज होती है. फॉर एग्जांपल पंजाब के पास वो क्लाइमेट है जिसकी वजह से क्या रहता है? एकलौता पंजाब क्या करता है? वीट को क्या करता है? क्वांटिटी में ग्रो करता है. ठीक है, मतलब आपको कोई नेचुरल एडवांटेज है जिसकी वजह से आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बना पा रहे हो जो आपको क्या हो रहा है? उसका कोई सब्सटीट्यूट भी नहीं है, और आप क्या कर रहे हो? उसकी वजह से मार्केट को क्या कर रहे हो? कंट्रोल कर रहे हो, नेचुरल एडवांटेज की वजह से. उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल मोनोपोली. सिंपल मोनोपोली इज नथिंग बट, उसमें क्या होगा कि आप सब कस्टमर्स को क्या करोगे? यूनिफॉर्म प्राइस क्या करोगे? चार्ज करोगे. बस इतना ही है सिंपल मोनोपोली के अंदर. डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली मीन्स जो आप उन्हें फीचर्स में पढ़ चुके हैं, चार्जिंग डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट कंज्यूमर. ओके, इट्स नोन एज डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली. And another is voluntarily, means when some sellers come together voluntarily to sell a product in a group. Okay, it's called as voluntary monopoly. Means they voluntarily come together to sell a product which does not have any substitute in the market, and they can control the whole market. For example, oil petroleum company OPEC, वो एकलौता कंपनी है जो ऑयल प्रोड्यूस, ऑयल बेचता है. ठीक है, ओपेक क्या है? वहाँ पर एक नहीं है, बहुत सारे सेलर्स हैं जो साथ में ये कंपनी को क्या कर रहे हैं? रन कर रहे हैं. ओके, तो क्या ये वॉलंटरी मोनोपोली? दिस इज द टाइप्स ऑफ मोनोपोली. विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर टॉपिक टाइप्स ऑफ मोनोपोली. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ओलिगोपोली. ओके, so our second last topic of the day is oligopoly. Okay, oligopoly is not that much important as monopoly. For exam point of view, according to me, according to my sources, oligopoly is not important as monopoly. Okay, so just we'll go through this topic
will not go in the detail for this. Okay, so oligopoly is nothing but a market in which there are few sellers of the product selling differentiated products, or they are selling homogeneous product. A best example for understanding the oligopoly market is mobile sellers or cement industry. There are few sellers for the mobile. Okay, for example MI. Okay, second Samsung, Realme, etc. There are few sellers who are selling mobile phones. Okay, and there are few sellers who are selling cement. Okay, ये ऐसा मार्केट है जहाँ पर फ्यू सेलर्स होंगे जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, मतलब थोड़े से डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे सेल करेंगे, एंड सेकेंड क्या करेंगे, जो होमोजेनियस होंगे एक दूसरे से. ठीक है, तो क्या है, ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स है जो डिफरेंशिएटेड और होमोजेनियस प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं. ओके, सो ये था हमारा ओलिगोपोली. एग्जाम्पल क्या पढ़े हमने, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर एंड सेकेंड इज सीमेंट कंपनी एक्सेट्रा. ओके, उसके बाद अब इसके फीचर्स देख लेते हैं फटफट अपन. ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में इसको ऊपर से इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज ये टॉपिक अकॉर्डिंग टू मी माई सोर्सेज परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर का. बट अकॉर्डिंग टू मी माई सोर्सेज माई अंडरस्टैंडिंग, ओके, मैं किसी को ही नहीं बोलूँगा टॉपिक स्किप करने के लिए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना मोनोपोली और परफेक्ट कॉम्पिटिशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, सो इसका पहला फीचर क्या आप दिया है इन लोग ने, फ्यू फॉर्म्स और sellers. There are few firms and sellers. There are few sellers or firms in oligopoly market. ठीक है, वो जो उसने फीचर्स में बोला था, मीनिंग में बोला था, वो नीचे फीचर्स में रिपीट कर रहा है कि क्या करते हैं, कुछ सेलर्स देंगे जो, या कुछ फर्म्स देंगी जो डोमिनेट करेगी पूरी मार्केट को. ठीक है, और उसका प्राइस भी क्या करेंगे, इन लोग डोमिनेट करेंगे, इन लोग सब मिलके क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे. ओके, सेकेंड फीचर्स है इसका इंटरडिपेंडेंस. क्या है, इंटरडिपेंडेंस. ओके, इसका मतलब क्या होता है, ये फर्म एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है प्राइस को लेकर. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर या कोई सीमेंट प्रोवाइडर, जहाँ पर समझो एग्जाम्पल अभी करंट मार्केट में 5 सेलर्स हैं, जो 5 फर्म्स हैं जो सीमेंट बेच रहे हैं. ठीक है, अगर उसमें से एक फर्म ने भी प्राइस अपना कम कर दिया तो क्या होगा, फिर दूसरे फर्म्स भी क्या करेंगे, प्राइस को क्या करेंगे, कम कर देंगे. बिकॉज कंपटीशन क्या होगा, हिट हो रहा है ना उसकी वजह से. कि क्या होगा कल को, फिर वही जिसने प्राइस कम किया सब उसके पास भागेंगे लेने के लिए. उसको देखते हुए क्या करेंगे, दूसरे सीमेंट प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, सीमेंट फर्म वाले क्या करेंगे, सीमेंट बेचने वाले सेलर्स क्या करेंगे, उन लोग भी क्या करेंगे, प्राइस क्या कर देंगे, कम कर देंगे. मतलब क्या हो रहा है, ये इंटरडिपेंडेंट है, उन लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है कि बाबा इसने प्राइस कम किया तो मेरे को करना ही पड़ेगा, वरना क्या होगा, लोग दूसरे के पास जाएंगे लेने के लिए, इसने प्राइस कम किया है. ठीक है, तो ये था तुम्हारा सेकेंड फीचर्स. एंड थर्ड इज एडवर्टाइजिंग. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है. ठीक है, ये मार्केट के अंदर क्योंकि इन लोग को बहुत रिग्रेसिव एंड बहुत ज़्यादा मतलब एडवर्टाइजिंग करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट को क्या करने के लिए, बेचने के लिए. बिकॉज इन लोग के कॉम्पिटिटर्स, पहले इन लोग कम हैं बेचने वाले मार्केट के अंदर. ठीक है, अब 4-5 फर्म है जो कोई प्रोडक्ट बेच रही है, अब उन लोग को अपना प्रोडक्ट बेचना है तो उन लोग एडवर्टाइजिंग क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा. बिकॉज इन लोग को क्या करना है, लार्ज पार्ट ऑफ द मार्केट को क्या करना है, कवर करना है. इसलिए इन लोगों को एडवर्टाइजिंग क्या करना पड़ता है, रिग्रेस एडवर्टाइजिंग करना पड़ता है. ओके, उसके बाद एंट्री बैरियर्स. तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोई एंट्री बैरियर्स नहीं है, कम सेलर से कोई भी फर्म इजीली एंटर कर सकता है और इजीली क्या कर सकता है, एग्जिट करता है. तो क्या था अभी हमारा 4th टॉपिक यहाँ पर. आई नो कुछ अच्छा नहीं लग रहा रहेगा बोर्ड के ऊपर, बट मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं इसको ऊपर से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लगता टॉपिक मुझे. ठीक है, तो 4th क्या है, एंट्री बैरियर्स. ओके, एंट्री बैरियर्स मतलब कोई भी फर्म कभी भी मार्केट में आ सकता है और कभी भी क्या कर सकता है, एग्जिट कर सकता है. ओके, 5th इज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी. दैट इज, अब इसको मैं पढ़ लेता हूँ आपके लिए.
देयर इज ए लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी अमंग द फर्म्स इन टर्म्स ऑफ दियर साइज, सम फर्म में स्मॉल वाइल अदर्स में बी अ बिगर साइज, मतलब कुछ फर्म्स छोटी भी हो सकती है, कुछ फर्म्स बहुत बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। 4-5 सेलर्स हैं, हो सकता है उसमें से कुछ फर्म बहुत ऊपर हो और कुछ फर्म छोटी मोटी हो, ठीक है। उसके बाद 6th है अनसर्टेनिटी, देयर इज ए कंसिडरेबल एलिमेंट ऑफ टाइप्स ऑफ मार्केट ड्यू टू डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न, राइवल्स में जॉइन हैंड्स इन कॉर्पोरेट में ट्राई टू फाइट ईच अदर। मतलब ये बोलना चाह रहा है, ये मैंने मेरे लिए रीड किया था, मैंने ये पॉइंट्स आपकी बुक में शायद ये नया ऐड हुआ है ये फीचर्स के अंदर, कि अनसर्टेनिटी है, हो सकता है कल को वो फर्म्स मिल के हाथ मिला के बिजनेस करें, मतलब सब लोग एक साथ आके बिजनेस करें या एक दूसरे से क्या करें, कंपटीशन करें। ओके, तो ये क्या है, मार्केट में अनसर्टेनिटी बिकॉज फ्यू सेलर्स है। ओके, तो ये था तुम्हारा ओलिगोपोली मार्केट। ओके, एंड ये था तुम्हारा इम्परफेक्ट कंपटीशन में ओलिगोपोली मार्केट एंड मोनोपोली। मोनोपोली हमने पढ़ा, ओलिगोपोली हमने पढ़ा। ओलिगोपोली में क्या होता है, फ्यू सेलर्स होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंशिएटेड होमोजेनियस प्रोडक्ट बेचेंगे मार्केट के अंदर। एग्जांपल था मोबाइल सर्विस इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री। ओके, उसमें फीचर्स हमने पढ़ा कि फ्यू फर्म्स एंड सेलर्स है, एडवर्टाइजिंग ज़्यादा करना पड़ता है, प्राइस को लेकर इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर एंट्री बैरियर्स कम है उन लोगों के पास, कोई भी आ सकता है कोई भी जा सकता है मार्केट में से। यूनिफॉर्मिटी, कोई फर्म ज़्यादा बड़ी रहेगी, कोई फर्म एकदम छोटी रहेगी, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है एंड अनसर्टेनिटी है। चाहे तो उन लोग साथ में आके बिजनेस करें, चाहे तो उन लोग क्या करेंगे, सडनली एक दूसरे से कंपटीशन क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद है अपना अगला टॉपिक जो बहुत छोटा सा है, दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, वो भी अभी हम इसमें ही पढ़ लेते हैं, विल नॉट गो इन डीप बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो रहा है एंड लास्ट टॉपिक है छोटा सा है, इसलिए इसको मैं यहीं पर कवर कर लेता हूँ। एंड ये वाला टॉपिक भी मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है जितना मेरे को मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन लगता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरे सोर्सेज हैं, ठीक है। अगर आप, मैं ये नहीं बोलूँगा कि छोड़ दो इसको, पूरे टॉपिक को आप भी इसको गो थ्रू कर सकते हो, आपको पढ़ना है तो आप और डिटेल में इसको पढ़ सकते हो। जो मैंने बताया सिंपल लैंग्वेज में आप रीड करोगे तो बुक में भी वही दिया है, बट मैं इसको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा रहा हूँ, बोलने का फ़र्क मेरा वही है, डिफरेंस वही है बस इसमें। ओके, सो देखो मोनोपोलिस्टिक, मैं इसको उसको फटफट रीड करके बता देता हूँ आपको। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता क्या है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ वेरी रियलिस्टिक इन नेचर। इन दिस मार्केट देयर आर फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड सम फीचर्स ऑफ मोनोपोली एक्टिंग टुगेदर। मतलब ये क्या बोल रहा है, ये कॉम्बिनेशन है कौन सी मार्केट का, परफेक्ट कंपटीशन का और मोनोपोली मार्केट का। क्यों ऐसा बोल रहा है ये, कि इसमें भी क्या होगा, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बट उन लोग जो प्रोडक्ट बेचेंगे उसका कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं रहेगा। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता था कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स सेलर उधर भी है, बट वहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट दूसरे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है। बट यहाँ पर क्या होगा, कोई भी प्रोडक्ट क्या रहेगा, क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं रहने वाला है, ठीक है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं रहने वाला है, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, ये कॉम्बिनेशन है मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का। ओके, अब इसके फीचर्स पढ़ेंगे तो अपन और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखो इसमें कुछ कितने फीचर्स दिए हैं, कुछ 5 या 6 फीचर्स दिए हैं। पहला है फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। यहाँ पर क्या हो रहा है, अब मैं इसको रीड कर देता हूँ। इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन द नंबर ऑफ सेलर इज लार्ज बट कंपैरेटिवली इट इज अ लेस देन दैट ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ड्यू टू दिस रीजन सेलर बिहेवियर लाइक मोनोपोली। मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं मार्केट में, बट उतने नहीं है जितने परफेक्ट कंपटीशन में है। तो इन लोग क्या करते हैं, फिर एज एन मोनोपोलिस्ट एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर इधर भी है, बट क्या हो रहा है इधर पर कि यहाँ पर जितने परफेक्ट कंपटीशन में उतने नहीं है, बट यहाँ पर भी क्या है, अच्छे खासे सेलर्स हैं मार्केट के अंदर। इसलिए लोग क्या करते हैं, फिर खुद को मोनोपोलिस्ट समझने लग जाते हैं, ठीक है। ये था पहला फीचर। फिर सेकेंड फीचर क्या बोल रहा है, फेयरली देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ओके, क्या बोल रहा है, लार्ज नंबर ऑफ बायर। अब ये इसके लिए भी आपको डेफिनेशन रीड कर देता हूँ मैं। इन दिस मार्केट देयर आर फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर, कॉन्सिक्वेंटली नो सिंगल बायर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बाय चेंजिंग द इंडिविजुअल डिमांड। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, लार्ज नंबर ऑफ बायर है, इसलिए कोई सिंगल बायर डिमांड को फ्लक्चुएट
नहीं कर सकता है। बस इतना ही याद रखना है इसमें, ठीक है। उसके बाद थर्ड है प्राइस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। देखो इसमें क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज अ मेन फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन in this market. There are many firms producing a particular product, but the product of each firm is in a some way different from other product in every market firm. बस इसमें याद यही रखना है आपको कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब प्रोडक्ट एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट रहेंगे, ठीक है, और बस उसका पैकेजिंग वगैरह, उसका जो साइज़ वगैरह वो क्या रहेगा, कलर वगैरह क्या रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसने क्या एग्जाम्पल यूज़ किया है आपकी बुक में, मैं मेरा एग्जाम्पल दूँ तो मोबाइल फ़ोन्स, ऑलमोस्ट सब मोबाइल्स के फीचर्स वगैरह सेम रहेंगे, बट कोई दिखने में एकदम बड़ा है, कोई छोटा है, कोई स्लिम है, किसी का कैमरा बहुत अच्छा है। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, बट एक दूसरे क्या है, थोड़े से क्लोज सब्स्टिट्यूट है। ओके, मतलब अगर मेरे को एमआई का फ़ोन नहीं लेना है तो मैं रियलमी का भी लूँगा, बट क्या होगा, उसका लुक्स डिफरेंट हो जाएगा, बट थोड़े फीचर्स क्या रहेंगे, दोनों के सेम रहेंगे। ओके, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक भी एग्जांपल ले सकते हो, उसके अंदर थम्स अप, पेप्सी वगैरह काम एक ही कर रहा है, कोल्ड ड्रिंक है वो, सो गर्मी में पीना है आपको, ठीक है। टेस्ट भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बट पैकेजिंग वगैरह क्या है उसकी डिफरेंट है। ओके, फिर फ्री एंट्री एंड एग्जिट, इसके अंदर भी क्या है, सेम यहाँ पर ओलिगोपोली की तरह कि तुम्हारे को फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट है मार्केट से। ओके, उसके बाद लास्ट है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट में क्या बोल रहा है, सेलिंग कॉस्ट और परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या हो रहा है, सेलिंग कॉस्ट, ये देखो क्या डेफिनेशन क्या बोला है, पहले वो देखो कि इट रिफर्स टू द कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म टू क्रिएट मोर डिमांड फॉर हिज प्रोडक्ट एंड दस इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल। इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, होर्डिंग्स, एग्जीबिशंस, फ्री गिफ्ट, फ्री सैंपल एक्सेट्रा। मतलब ये क्या बोल रहा है कि फर्म ये कॉस्ट को क्या करता है, इनकर्ट करता है। क्यों इनकर्ट करता है, उसकी डिमांड क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और क्या क्या एक्सपेंसेस उसने बता दिया है, फ्री गिफ्ट, फ्री सैंपल, एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा। यह है सेलिंग कॉस्ट। एडवर्टाइजिंग वगैरह आपका सिंपल सी बात इंक्लूड होगा सेलिंग कॉस्ट में। मैं डेफिनेशन इसलिए रीड कर रहा हूँ बिकॉज ये न्यू सिलेबस की बुक है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ। ओल्ड सिलेबस की बुक का कॉन्सेप्ट मुझे पता है, बट ये न्यू सिलेबस की बुक है, इसलिए आपके लिए डेफिनेशन थोड़ा सा रीड करना पड़ रहा है। एंड द लास्ट इज क्लोज सब्स्टिट्यूट। ये मैंने आपको इधर ही बोल दिया प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में कि प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पर एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट है, एग्जाम्पल टूथपेस्ट, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। ओके, तो ये था आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जहाँ पर हो रहा क्या है, सिंपल वर्ड्स में ध्यान रखो, जहाँ पर दोनों मार्केट के फीचर्स है, मोनोपोली के भी है और परफेक्ट कंपटीशन के भी क्या है, फीचर्स है, ठीक है। मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। फिर भी आप ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को अच्छे से गो थ्रू करो, बहुत सिंपल है, पढ़ के एकदम इजीली समझ जाओगे। मैंने भी ऊपर से इसको टच कर दिया, अच्छा खासा टच कर दिया, ठीक है। फिर भी अगर आपको टॉपिक नहीं समझता है तो यू कैन पिंग मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके, एंड आई विल ट्राई टू कंटिन्यू अपलोडिंग द वीडियोज़, at least 2 videos in a week, okay, so we will complete the portion in some few months, okay. So I hope you like my video, please like share subscribe, okay, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कुछ कमेंट है तो डाउट है, सॉरी, कुछ डाउट है तो कमेंट के अंदर पूछो। एंड चिल करो, पढ़ाई करो, एग्ज़ाम आप लोग के ऑफलाइन होने वाले, 12th का एक अपडेट है, ठीक है, अपने अपने कॉलेज अपने अपने स्कूल्स के अंदर होंगे, बट अब तक जहाँ तक अपडेट मिली है गवर्नमेंट की तरफ से, आप लोग के एग्जाम्स ऑफलाइन ही होने वाले, ठीक है। आप लोगों को कुछ टॉपिक्स में कुछ सिलेबस को कट भी किया है, सो एन्जॉय द एडवांटेजेस, लर्न एंड ग्रो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू, बाय बाय।